Hello everyone, how are you all? This is Abhishek, and today we are going to discuss about the next part of this lesson, that is a key element of democratic government. In this chapter I have discussed about the country, that is South Africa, in which how apartheid rule was being followed by that government, the African government, and then after a long struggle by the leaders of African National Congress and the great Nelson Mandela, Africa become or turn into a democratic government in which Africa and African people of different races and different uh, belief were considered equal. Okay, this is the actual meaning of democracy, in which all the people, irrespective of their religion, their race, their gender, treated equally. That is a true democracy. Okay, so we have studied about apartheid rule, that what was the process was being followed in apartheid, in which the rules were made for different races. Okay, like there was different rule for white people, there was different rule for black people. Okay, and it was entirely discriminatory thing in South Africa. But after a long struggle of Nelson Mandela and his colleague, his supporter, South Africa finally turned into a true democracy. In 1994, South Africa become a democracy, a democratic government. Okay, and Nelson Mandela, after 28 years of imprisonment, he was elected as the president of South Africa. He was a great follower of Mahatma Gandhi. Okay, so in this video we are going to study about second part. uh, the topic we are going to deal is participation in democracy. Participation. Okay, हम जानते हैं, we know that democracy is the rule of people. Democracy is a rule of people. So it is very important for a democracy to participate by its people. The people must participate in the functioning of a democratic government. किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अगर स्ट्रेंथन करना है तो उसमें जो पीपल है उसका पार्टिसिपेशन, जो सिटीजन्स हैं उस कंट्री के, उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं? तो पहला प्रोसेस है बाई casting vote to elect their leader. Okay, people cast their vote to elect their leader. That particular leader will take decision on the behalf of the people. लोग क्या करते हैं, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लोग क्या करते हैं, अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, और वो जो लीडर होता है वो उनके बिहाफ पे क्या करता है, जाके डिसीजन मेकिंग करता है, उनके वेल बीइंग के लिए कानून बनाता है या फिर वेलफेयर का काम करता है. ठीक है, तो पहला पार्टिसिपेशन का पहला वे क्या है, लोग इलेक्ट करेंगे वोट देकर. अब वोट कौन देगा? वोट वो लोग देंगे जो अबव 18 ईयर के हो चुके हैं, जो अबव 18 ईयर के हो चुके हैं. ठीक है, एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज करके. गॉट इट? देखो, ये हो गया पार्टिसिपेशन. एक तो पहला टाइप हो गया पार्टिसिपेशन का कि लोग अपने लीडर्स को इलेक्ट करेंगे. दूसरा क्या होगा? अब देखो, इलेक्शन तो होता है एक सर्टेन पीरियड के लिए इलेक्शन होता है, मतलब हर 5 साल पर. इंडिया में ये पीरियड रखा गया है 5 years, मतलब हर 5 साल पर
लोग फिर से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उम्मीदवार खड़ा होते हैं, और जब उनको वापस पावर में आना होता है तो उन्हें लोगों से क्या होना चाहिए, फिर से एक बार लोगों से मैंडेट लेना पड़ता है। पीपल ऑफ द कंट्री जो है वो अपना मैंडेट देती है, मतलब अपना जनादेश देती है, तब वो वापस ये जो इनके लीडर्स होते हैं वो अगेन पावर में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वापस मैंडेट लेना है, अगर आपको वापस लोगों का वोट लेना है, तो आपको ये मस्ट है कि यू हैव टू डू वर्क with regards to the interest of people। ओके, लोगों की जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। लोग जो विश करते हैं, जो जो चाहते हैं कि मेरे एरिया में या फिर मेरे कंट्री में ऐसे काम हो, उस तर्ज पे आपको वो वोट देते हैं। अगर आपको पावर में रहना है वंस अगेन, तो आपको पहले वो किए गए वादों को क्या करना होगा, पूरा करना होगा। ठीक है, अगर आप नहीं पूरा करते हो तो जब आप लोगों के पास आओगे वापस वोट मांगने के लिए, दे विल वोट यू आउट, आपको वो वापस भेज सकते हैं। ठीक है, तो एक की फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, पहला कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पार्टिसिपेशन कई तरीके से होता है। पहला तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, लोग वोट देते हैं। इलेक्शन हर 5 साल पे इंडिया में इलेक्शन होता है और लोग अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। ये जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल वो जाके कानून बनाते हैं या फिर लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है, और फिर जब उनको वापस पावर में आना होता है तो वो एक बार फिर 5 साल बाद इन्हीं लोगों के दरवाजे पे आते हैं, मतलब सिटीजन्स के दरवाजे पे आते हैं और फिर से इनसे मैंडेट मांगते हैं। मैंडेट का मतलब जनादेश मांगते हैं। ठीक है, इस तरीके से लोग क्या कर सकते हैं, लोग अपना एक अधिकार को, अपने राइट को फील कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास चलो कम से कम एक राइट तो है कि मैं लोगों को वोट दे सकता हूँ। ठीक है, और इससे जो लीडर्स होंगे उनको क्या लगेगा, उनको एक तरह से लिमिटेशन होगा कि हाँ अगर लोगों ने हमें चुन के भेजा है तो हमें उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके विश के लिए, उनके विल के लिए काम करना होगा, अदरवाइज अगली बार इलेक्शन में वो हमें मे बी वोट ना करें। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, एक जो भारत का या किसी भी गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक नेचर है वो मजबूत होते रहेगा। अब देखो, ये तो पार्टिसिपेशन का एक तरीका हो गया। अब ये तो 5 साल में एक ही बार आता है। मान लो कि मैंने हम सिटीजन्स ने किसी को चुन के पार्लियामेंट भेज दिया या फिर विधानसभा भेज दिया। ओके, अब ये 5 साल क्या होगा, 5 साल तो उसके पास सारा अधिकार है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। अब उसको जो मन में आएगा वो करेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उसको जो मन में आए वो करे, करप्शन करे, काम ना करे, बिल्कुल अपने लोगों के लिए ही काम करे, बाकी जो जनता है उसके इंटरेस्ट को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे। ऐसा होता है बहुत बार। तो इस दौरान क्या करोगे आप? अब तो 5 साल के लिए हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रहोगे। उस समय पीपल जो हैं वो अदर डिफरेंट वेज को चूज करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कई सारे अलग तरीके हैं जिसके द्वारा भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। कैसे? तो उसका हम आपको एग्जांपल बताते हैं। ये पार्टिसिपेशन का ही वो दूसरा तरीका है। कई सारे तरीके हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नमेंट को रास्ता दिखाते हैं। तो पहला क्या काम होगा? पहला कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके इफ रिक्वायर्ड, क्रिटिसाइज इफ रिक्वायर्ड। मान लो कोई गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, जिस गवर्नमेंट को पीपल ने चूज किया है और वो पीपल के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो हमको क्या करना होगा? हम एज अ पीपल हमको उसके फंक्शनिंग पे बिल्कुल फोकस रहना होगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सा लॉ बना रहे हैं, कौन सा लॉ हमारे लिए अच्छा है, कौन सा लॉ हमारे खिलाफ है। ठीक है, तो उस समय अगर कुछ गड़बड़ है तो क्रिटिसाइज करेंगे, गवर्नमेंट की आलोचना करेंगे। ठीक है, आलोचना करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आलोचना करने का कई सारा जरिया हो सकता है। ठीक है, अगेन आप क्या कर सकते हैं? आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट
पार्टिसिपेशन का अलग तरीका है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, रैलीज कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन चला सकते हो, ठीक है। सिग्नेचर कैंपेन चला के आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि मान लो प्रोटेस्ट, जैसे 2013 में, इन 2013 जो यूपीए गवर्नमेंट थी वो क्या हो गई थी, वो बिल्कुल करप्ट घोषित हो गई थी कि इसके जितने भी लीडर्स हैं वो बिल्कुल करप्ट हैं, देश में बहुत सारा भ्रष्टाचार है, 2,76,000 करोड़, 1,76,000 करोड़ का करप्शन का आरोप लगा था उस पर। तो जनता में बिल्कुल क्या हो गया, एक तरीके से आक्रोश हो गया और जनता प्रोटेस्ट करने कहाँ चली गई। एक मैदान है दिल्ली में जिसको बोलते हैं रामलीला मैदान, वहाँ पे पूरा दिल्ली उठ के, दिल्ली के जो जनता थी वो वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करने लगी। और उसी के साथ साथ पूरे देश में जगह जगह लोग प्रोटेस्ट करने लगे। अन्ना हजारे इसके लीडर थे, अरविंद केजरीवाल इसके लीडर थे, और अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट क्या हो गई, अल्टीमेटली उस गवर्नमेंट में जो भी लीडर थे उनको प्रधानमंत्री ने क्या किया, जो भी करप्ट लीडर थे उनको उन्होंने डिसमिस कर दिया, हटा दिया, लेकिन बावजूद उसके वो सरकार चली गई, ठीक है। तो ये पावर ऑफ पीपल है, पावर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल है। इस तरह के सब रैली करना, रैली का मतलब देखो अभी जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि हमारे किसान भाई झेल रहे हैं, तो एक अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। महाराष्ट्र के जो किसान हैं उनको बहुत समय से अपने उपज की सही कीमत नहीं मिल रही है, अपने अनाज की सही कीमत नहीं मिल रही है। तो वो क्या करते हैं, वो इस बार क्या किए थे, एक जगह इकट्ठा होकर और मार्च किए थे। जैसे कि एक शहर है नागपुर से लेकर मुंबई तक उन्होंने क्या किया था, 276 किलोमीटर का मार्च किया था, ठीक है। तो ये क्या है, एक रैली है, ये भी एक तरीका है अपना विरोध जताने का गवर्नमेंट से, ठीक है। अब किसान रैली करेंगे, मीडिया उनको दिखाएगा, तो ये खबर किसके पास जाएगी, गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो गवर्नमेंट कंसर्न होगी कि हाँ ये हमारे खिलाफ काम रैली कर रहे हैं, इनके इंटरेस्ट पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिग्नेचर कैंपेन चला सकते हैं कि अगर कोई एक मेमोरेंडम हो जिस पे कुछ मांग लिखी हो और पूरे देश भर में और उस पर सिग्नेचर कैंपेन चला दिया जाए कि हाँ इसमें कितने लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से भी गवर्नमेंट को हम क्या कर सकते हैं, घेर सकते हैं, गवर्नमेंट को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए काम कर सके, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में क्या है, आजकल लोग हैशटैग चलाते हैं ट्विटर पे कि हैशटैग कसाब को फांसी दो, हैशटैग रेपिस्ट ऑफ निर्भया रेपिस्ट को क्या करो, जल्दी से जल्दी उन्हें सजाए मौत दो, ये सब बातें हैं। तो वहाँ से भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है। अब देखो ये सब जो है ये सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसा ग्रुप है जो इस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, उनके पास एजुकेशन नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में। तो वो ग्रुप बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर, जैसे मान लो कि महिलाएं हैं, उनको अपने लिए कुछ काम कराना है, या फिर कोई ट्राइब्स हैं, वुमेन्स, दलित ग्रुप है, ये जो है इनको अगर अपने तरफ सरकार का ध्यान खींचना है तो ये क्या कर सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, एक सोशल मूवमेंट चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं, सोशल मूवमेंट, इसी को बोलते हैं सोशल मूवमेंट। सामाजिक आंदोलन चला के सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि वो हमारे लिए काम करे, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अगर अब देखो इसका क्या निचोड़ है, अपने गवर्नमेंट को चूज करने के लिए महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, किसी भी डिफरेंट, अमीर, गरीब,
एजुकेटेड, इनएजुकेटेड, सारे लोग वोट करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबके लिए काम करें, ठीक है। इसमें से कोई ग्रुप ऐसा फील करता हो कि मेरे लिए काम नहीं हो रहा है जबकि मैंने वोट दिया है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपना विरोध जता सकता है, वो प्रोटेस्ट कर सकता है, वो सिग्नेचर कैंपेन चला सकता है, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता है, ठीक है। समझ रहे हो? इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमारा जो डेमोक्रेटिक नेचर है हमारे गवर्नमेंट का, वो काफ़ी मजबूत रहेगा। हम जनता, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, हम अलर्ट रहेंगे कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई अनजस्ट लॉ बना दिया तो उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे अनफेयर कानून बना दिया, जैसे कि अभी आपने शाहीन बाग में देखा होगा, बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, वो गवर्नमेंट ने कानून बनाया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, उस कम्युनिटी को वो कानून पसंद नहीं था, ठीक है। तो ये राइट है, ये सारा राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि गवर्नमेंट को हम क्या कर सकें, घेर सकें और अपने विल के अकॉर्डिंग काम करवा सकें, ठीक है। तो डिफरेंट वे ऑफ पार्टिसिपेशन है हमारे पास, ठीक है। हम सिग्नेचर कैंपेन चला सकते हैं, रैली चला सकते हैं, सोशल मूवमेंट चला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा रोल प्ले कौन करता है? मीडिया। सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल में सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? मीडिया। ये मान लो गवर्नमेंट है, ये हम हैं पीपल, तो हम गवर्नमेंट से तो बात नहीं कर पाते हैं, तो ये बीच में जो मीडिया होता है ये हमारी बातों को गवर्नमेंट को दिखाता है, ठीक है। तो मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है। अब मीडिया में क्या क्या आता है? टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर, ठीक है। ये मास मीडिया है। तो जहाँ कहीं भी घटना होती है तो देखते हो पहले ही पेज पे छप के आता है कि यहाँ पे ये घटना हुई, ठीक है। और इस तरीके से गवर्नमेंट कंसर्न होती है। तो अगर हम अलर्ट रहेंगे, क्या रहेंगे, अगर पीपल अलर्ट रहेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट भी क्या रहेगी, पीपल के लिए काम करेगा। अगर पीपल ऐसे ही वोट दे दिया उसके बाद से अब कुछ पूछ नहीं, अपने काम में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर क्या होगी, वो गवर्नमेंट एक तरीके से मनमानी करने लगेगी, ठीक है। और उसमें जो लोग होंगे वो करप्ट हो जाएंगे, अपने लिए काम करेंगे। गॉट इट? आई होप आपने ये टॉपिक समझ लिया होगा। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप, मेरे पास आपके लिए कुछ होमवर्क है। आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन से? व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच people participate into the functioning of government? This is first question. Second question, what will happen when people participate in the functioning of the government? क्या होता है जब लोग गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में पार्ट करते हैं? और चौथा क्वेश्चन है, हाउ द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ गवर्नमेंट can be strengthened, how a democratic structure of the government can be strengthened by the participation, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको करके मुझे भेजना है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।